Hello, my dear all. Third chapter, two stories about flying. I am going to start, and you know very well there are two stories in this chapter, and two stories are first one is about flying, his flight, his first flight, and second is also about flying. And in this, we will know only his first flight, and the second part of this chapter is black aeroplane. Okay. As you know, it is very interesting story about a seagull and his first flight. It is written by a significant Irish novelist and short story writer Liam O'Flaherty. Okay, and if I'm talking about this part, first part, his first flight, then his first flight tells the story of a young seagull that's afraid to take his first flight. यानी पहली बार जो अपना स्टेप्स उठाना चाहता है, पहले बार जो सबसे पहली बार वह भी फ्लाई करना चाहता है. The story begins with a young seagull being alone on a leash. Okay, all four of his brothers and sisters had flown away the previous night. यानी उसे जानबूझकर के छोड़ दिया गया सो दैट कि जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल वह भी फ्लाई करने के लिए कोशिश करें. जैसे कभी कभी आपको भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलते रहता है तो आप क्या करते हो, कभी ट्राई नहीं करते कुछ करने को, बट जब बहुत ज़रूरी हो जाती बिल्कुल आप कोशिश करने की शुरू ज़रूर कर देते हो. बिल्कुल वैसा ही. Only he was left because he was terrified of flying. His attempts at taking off proved to be beautifully unfruitful. यानी उन्होंने जो अटेम्प्ट किया at taking off proved to be unfruitful, but he tried to do same and done very well also. Although he had ran towards the wing of the lace and tried to flap his wings. जैसे ही उन्होंने आगे अपना कोशिश करता है, अपने विंग्स को फड़फड़ाने की कोशिश करता है कि वह भी अपने विंग से किस तरह से आगे वो फ्लाई कर सके. He became afraid. डरा तो था ही ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन इंस्टाइटल्ड फियर इन हिम. ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो विंग्स है, जो पंख है, वो उनको हेल्प नहीं करेगा और वो सक्सेस नहीं हो पाएगा. सो he ran away with his head bowed down. इसलिए वो कभी कोशिश भी नहीं करता है और वो ट्राई भी नहीं करता है. बिल्कुल. His wings were much bigger in size as compared to his brothers and sisters. Yet they were not afraid of flying. They confidently ran to the brink of is, flapped their wings and flew away. The young seagull, however, failed to gather courage to jump off the leash in order to fly. His parents approached him and asked him to follow the suit. They scolded him and even threatened him of starvation if he did not learn to fly, but the young seagull was still extremely scared of flying. आप भी कभी कभी जब आपके मन में कोई चीज़ की डर हो जाती है, यदि आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज़ की कमी कर देते हैं या तो देना बंद कर देते हैं, then you are thinking about this, what is the value and what I have to do so that you can earn something
and you can fulfill your requirement whatever. Like this, सीगल के पेरेंट्स भी उनको थोड़ा कमी कर दिया वो चीज़ देने में, यानी खाना देने में या फूड देने में आप बोलो तो, सो दैट वो खुद का कोशिश करे, लेकिन वह तो डरा हुआ था सीगल. An entire day had gone by since the young seagull's mother and father had reprimanded him and threatened to let him starve. None of his family members has approached him with either food or comfort. कोई भी उसे comfort यानी किसी भी तरह का सहूलियत देने के लिए तैयार नहीं हुआ, नहीं हेल्प करने के लिए आगे आया. The previous day he had watched his brothers and sisters flying about with their parents, who taught the former how to perfect the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. इन्हें बिल्कुल साथ दिया, बताया भी गया, और वो अपने ब्रदर सिस्टर के साथ देखा भी करता था कि किस तरह से हम कोशिश करें, फिर आगे भी बढ़ें, कैसे फ्लाई करूं. द यंग सीगल हैड वॉच्ड हिज older brother and catch his first hearing. यानी वो बिल्कुल किस तरह से अपने आप को ब्रदर सिस्टर के तरह फॉलो करके कैसे वो आगे बढ़ेगा, बिल्कुल यह सीगल ने देख चुका था. Okay? He, on the other hand, was taunted by the whole family for being a coward. Actually, सीगल बहुत अच्छे से फ्लाई नहीं करता ही नहीं था, कोशिश ही नहीं करता था. अच्छे से क्या, वो करता ही नहीं था. इसलिए इनके पेरेंट्स हमेशा अपने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया करता था कि वह देखो कितने अच्छे से कर पाता है. और दूसरी तरफ बोलूं तो उसे ये कहा जाता था कि बार बार टॉन्ट किया जाता था कि यू आर अ क्वाड सो दैट यू नेवर ट्राई टू फ्लाई. एज द सन रोज हायर एंड हायर इन द स्काई, इट्स ब्लेजिंग हीट बिकम अनबियरेबल फॉर द यंग सीगल, especially because he had not eaten anything the previous night. He wanted to bring of the edge of the leash, and standing on one leg, and he closed his eyes and pretended to be asleep. His family still took no notice of him. यानी दिन में जिस तरह से उसे भूख बढ़ती गई, उसके फैमिली भी उसके तरफ कोई ध्यान न दिया. His brothers and sisters were dozing off on the plateau while his father was watching him from afar. बहुत दूर से उनके पापा, फादर सीगल के फादर पेरेंट्स जो है वो देखा करते थे, नोटिस किया करते थे आखिर वो क्या करता है, क्योंकि आज जो है बहुत तेज़ धूप है, भूख भी उसे लगी है, और उनके पास सीगल के पास उसका कोई ब्रदर सिस्टर्स नहीं है कि उसे खाने में हेल्प करे. The young seagull noticed that his mother was devouring a fish, okay, and fish that she held between her claws. बच्चे को अपनी माँ को देख करके तो बहुत आशाएं बढ़ जाती है, बट ऐसा क्या हुआ? The sight of food drove the young seagull mad with hunger. जैसे ही उन्होंने अपने मदर के क्लॉस में देखा कि फिश है, तो उनकी भूख और भी बढ़ते गई, उन्हें खाने की मन होने लगे. He begged his mother to bring him some food, but she was not ready to oblige. He kept begging until his mother flew towards him with a piece of fish held in her beak. वो मांगता रहा, लेकिन उसकी मम्मी ने उनको नहीं दिया. मैं डियर, छोटी सी बात मैं ये भी बताऊंगा, अब आपको ये भी थोड़ा थोड़ा मन में होने लगा होगा कि जब उनके बच्चे को यानी सीगल के मम्मी को जब
देखा कि उनके बच्चे को भूख लगी तो क्यों नहीं दिया। कभी कभी आपकी परीक्षा होती है, कभी कभी आपकी एग्ज़ाम होती है, कभी कभी आप ये देखते हो कि जब तक आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलते रहता, मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो आप कोशिश नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी दुविधा में पड़ जाते हो, दुख में पड़ जाते हो, प्रॉब्लम में फंस जाते हो, देन ऑब्वियसली आप क्या करते हो, ट्राई करते हो। ओके, द थॉट ऑफ फाइनली हैविंग फूड टू ईट फिल द यंग सीगल एंड ऑब्वियसली विल ट्राई टू गेट। आप भी जानने लगे, जब उनको अब खाने का मन हो गया, भूख भी ज़्यादा लगी, तो कुछ ना कुछ करेगा। द मदर सीगल केम क्लोज टू द यंग सीगल बट नॉट क्लोज इनफ टू फीड हिम। उनके पास जरूर आई, लेकिन उनको खाना खिलाने के लिए नहीं आई। उनके तरफ कोई हेल्प करने के लिए नहीं आई कि कोई भी खाना मैं उसे दे दूं, क्योंकि उसे बहुत भूख है। ओके, सरप्राइज्ड बाय द मदर्स स्ट्रेंज बिहेवियर एंड miserable with hunger, the young seagull dove off. Okay, and what happened next? Lazy in the order to catch hold of the piece of fish his mother brought for him. Okay, however, he went outwards and downwards into space. Terror filled his heart, but it lasted only for a minute. His wings outstretched on their own. जैसे उन्होंने कोशिश किया कि नहीं मुझे फिश को कैच करना है, पकड़ना है, वैसे ही उसके अपने आप विंग्स क्या हुए, फैलना शुरू हो गए। एंड द विंड कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गया, और आगे जाते जाते वो खुद फ्लाई करने लगा। उसकी फीदर्स जो है खुद अपने आप में फैल गई। एंड ही फेल्ट द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और उसी के साथ उन्होंने ये भी सीख लिया कि किस तरह से हम अपने आप को एयर को कट करते हुए फ्लाई कर सकते हैं। और जब आप फ्लाई कर लिया उन्होंने, तो सीधी सी बात है वो अपने फूड का सर्च भी ज़रूर कर लिया होगा। आई एम गोइंग वेरी स्लोली सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। स्लो बोलने का कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताते रहते हैं कि सर थोड़ा स्लो कर दीजिए सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब समझ सकते हो, इसलिए जल्दीबाजी मत करो कि सर जल्दी से इसे कंप्लीट कर दीजिए। ओके, डोंट वरी, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? आई एम सेइंग क्लियरली वाज नॉट फॉलिंग हेडिंग एनीमोर। अब उसे ये भी डर नहीं कि वो गिर जाएगा। द यंग सीगल डिड नॉट फील द pangs of fear as he soared downward and outward। जैसे ही वो ऊपर नीचे करते जा रहा है, उसे अब कोई डर नहीं लगी, क्योंकि उनकी डर जो अंदर में थी वो खत्म हो गई। His family encouraged him by calling out exactly and flying around him। उनके आसपास ही इनके फैमिली मेम्बर जितने थे वो भी धीरे धीरे आ गया, और बिल्कुल वो देख करके बहुत खुश हुआ, और होना भी चाहिए। ओके, द यंग सीगल फ्लाई सो कॉन्फिडेंटली। ओके, और इस तरह से जितनी कॉन्फिडेंटली के साथ उन्होंने फ्लाई करना शुरू किया तो उनको अप्रिसिएशन भी मिलने लगा। सीगल हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। ही फ्लेw ओवर द वास्ट ओशन अनअफेयर्ड। बिना डरे हुए वो बिल्कुल उड़ने लगा, सभी जगह जाने लगा। He flapped his wings to rise upward, however being tired and weak due to hunger। एक्चुअली उन्हें कल से ही खाना नहीं मिला था, उनके ब्रदर सिस्टर ने भी उनको ज़्यादा हेल्प नहीं किया, और उनके पेरेंट्स से भी नहीं किया, तो भूख तो बहुत जल्दी ज़्यादा लगी थी। लेकिन लास्ट में जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तब उन्होंने फ्लाई करना शुरू कर दिया, और अब वो फ्लाई तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसकी भूख से उनकी वीकनेस जो है और ज़्यादा आने लगे, तो उन्होंने उड़ना ज़रूर शुरू कर दिया, और वो उड़ भी गया और फ्लाई करने लगा बिल्कुल। ही कुड नॉट राइज सो ही लेट हिज फीट सिंक फर्दर इन द वाटर। अब वो थक गया ऑब्वियसली, क्योंकि उसे भूख लगी थी। स्टेंजली ही स्टॉप्ड सिंकिंग द मोमेंट हिज बेली टच्ड। और जैसे ही वो धीरे धीरे पानी में पैर को छूते हुए और नीचे जाता, द यंग सीगल वॉज floating on the water now। Around him, his family was screaming, okay, and praising also।
यू नो वेरी वेल कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यदि कुछ अच्छा करते हो तो आपके फैमिली मेम्बर आपको बहुत प्रशंसा करती है, आपके बारे में बहुत सोचते भी है, आपको इनक्रेज भी करते हैं और करना भी चाहिए। बट यदि आप फैमिली मेम्बर की बात नहीं मानते हो, उनकी गाइड जो करते हैं उन्हें नहीं समझते हो, तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस नहीं कर पाते हो। ओके, सो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना फिश को भी पकड़ लिया और फ्लाई भी करना स्टार्ट कर दिया। दिस हैप्पीनेस न्यू नो बॉन्ड्स, द यंग सीगल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरह से, जिस तरह से सीगल ने ट्राई किया फ्लाई करने के लिए, तो आज अब यंग सीगल क्या हो गया, अपने आप को पहले बार फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली बार उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। और वह पहली बार अब कर दिया, बिल्कुल सब दिन उड़ेगा, सब दिन फ्लाई करेंगे जब कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो। ओके, ओवरऑल कहना ये था कि उन्होंने अपने अंदर से डर को निकाला, उन्हें ज़रूरत पड़ा और वह तब फर्स्ट टाइम फ्लाई किया। और उससे पहले उन्हें सभी ज़रूरत उनके ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स पूरा कर दिया करते थे, इसीलिए उन्होंने कभी कोशिश किया ही नहीं। तो लास्ट में बिल्कुल आप मैं बोल दूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, थैंक यू सो मच।